हरिनगर के विधायक श्याम शर्मा ने अपनी विधानसभा जीत और दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद हरिनगर स्थित गांधी मार्केट में हर महीने आयोजित होने वाली श्री राधा रसोई की फरवरी माह में आयोजित रसोई में योगदान किया। उन्होंने न केवल गरीब लोगों को भोजन व कपड़े वितरित किए, वहीं सोशल मीडिया पर दिए अपने संदेश में विधायक शर्मा ने कहा कि इस नेक पहल से न केवल जरूरतमंदों की प्रेम और समर्पण के साथ सेवा की जा रही है, बल्कि यह नेक पहल समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य कर रही है। इससे पहले उन्होंने मार्केट प्रतिनिधियों और राधा रसोई के सहयोगियों के साथ राधा रानी और कुंज बिहारी जी की आरती की, जिसमें मार्केट की तमाम व्यापारी व क्षेत्रीय जनता शामिल हुई। राष्ट्र सर्वप्रथम प्रतिनिधि ने इस अवसर पर स्थानीय विधायक से बात की, जिन्होंने दिल्ली की नई सरकार को सेवा करने वाली और व्यवस्था सुधारक सरकार बताया। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में दिल्ली का विकास और भी तेजी से होगा। उन्होंने वार्ता के दौरान राधा रसोई के सदस्यों कमल चोपड़ा, वीरेंद्र पासवान, गायत्री देवी, मिस्टर ओसवाल, अशोक कुमार, विजय यादव एवं राधा रसोई के अन्य आयोजनकर्ताओं व सहयोगियों का भी धन्यवाद किया और आशा की हरि की नगरी हरिनगर में यह कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा। उन्होंने जनता से इस अवसर पर सुंदर, सुनियोजित और भ्रष्टाचार मुक्त हरिनगर बनाने के लिए भी योगदान मांगा। वहीं राधा रसोई के आयोजनकर्ताओं ने वार्ता में बताया कि गांधी मार्केट की टीम का यह समाज को योगदान है और अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसमें सभी ने सहयोग व समर्थन दिया है। टीम का अगला लक्ष्य इस भंडारे को महीने में एक बार से हफ्ते में एक बार तक लाना है, जिससे समाज को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संवाद के समापन सत्र को It is great pleasure to address the valedictory session of the 12th International Health Dialogue. Now, some of you would be wondering why the External Affairs Minister is doing so. And the answer is that we in India envisage health as central to development and development as key to international cooperation. In recent years, many of our global initiatives have revolved around health security. This is a domain where India has been the first responder, a development partner, a supply chain link, a health solution provider, a knowledge center, and in many ways, especially in the last decade, an exemplar. Allow me to dilate on these different dimensions. When the COVID pandemic started engulfing the world, the initial deliberations, and I was myself present at some of them, envisaged India as potentially the biggest concern. Ironically, India ended up not only looking after its own needs, but actually stepped forward to contribute to the world. We provided medicines at that time to 150 nations, vaccines to 99 countries and 2 international organizations, as well as masks, PPE kits, gloves, ventilator, you name it. Equally important, India chose to do this when its own vaccination program was still unfolding. A large number of developing nations received Made in India vaccine, either through our Vaccine Maitri initiative or other global programs. Now, this was in contrast to many developed countries who had stockpiled vaccines to the multiples of their population. Indian medical teams also went out in the Indian Ocean region to deal with pressing situations in some smaller countries. But this was not just an exception made during the COVID era. In fact, it is part of our approach to the world both before and after. Recently, we dispatched 66.5 tons of medical supplies to deal with the humanitarian crisis in Gaza. A little before that, a consignment of 1,400 kilograms of anti-cancer medicine were sent to strengthen the medical capabilities of hospitals in Syria. Even in Afghanistan,
India has stepped forward with 300 tons of medicines in the last few years, as well as the dispatch of specialists to a hospital that we had built in Kabul. Now, I can give you numerous other examples, whether it was to Sri Lankan hospitals during the economic crisis in 2022, to Ukraine as the casualties and the conflict spiked, or to Myanmar when it was struck by Typhoon Yagi. And the contributions themselves, they could be Bhabha cyclotrons to treat cancer, as in Mongolia, Kyrgyzstan and Kenya, or the Bhishma cubes for first line of care which we gave to Ukraine, or for that matter, APIs and antibiotics which we supplied to Cuba, or the Medvac services and sea ambulances ministered in the Maldives, or even the Jaipur Foot in Cambodia, or the dialysis machines in the Pacific Islands. In this pursuit, Indian diplomacy has worked with partners, big and small, islands and landlocked, close and distant, but united in their desire to ensure a better life for their citizens. Friends, India today has delivered more than 600 significant development projects in 78 nations across the world. Now, many of them are in the health sector. In parallel, the private health industry of India has also contributed to facilities and capacity in different geographies. And I want to say today that we value this industry as a part. From specialty hospitals to primary health centers, we have sought to make a difference across a wide spectrum. The COVID experience was a reminder to many nations to develop national capacities in this crucial domain. Here too, Indian companies have, as well as obviously the Indian government, we have sought to localize production and to strengthen capability. One of our significant efforts in this direction has been the E-Arogya Bharti initiative to train medical students and paramedics in Africa through online classes. By diversifying the production of medicines and expanding the scale of medical professionals, we are strengthening the ability of the global south to address its core concerns. गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में जनता सहकारी बैंक की हीरक जयंती समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बैंक की प्रगति की सराहना की और आयोजन में आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया है, जिसे सहकारी क्षेत्र के सहयोग से हासिल किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे हीरक जयंती वर्ष समारोह में बुलाकर आप सभी से मिलने का मौका दिया, अवसर दिया। जब सहकारिता मंत्री को किसी सहकारी बैंक का निमंत्रण मिलता है तो सहकारिता मंत्रालय सबसे पहला काम करता है, उसके बैलेंस शीट की जांच करता है कि बैंक के कार्यक्रम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जब सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि आप जा रहे हो, मैंने बोला इसका जांच मत करो, इस संघ के स्वयंसेवकों ने बनाया हुआ बैंक है, यहाँ बैलेंस शीट अच्छा ही है। और ये जो विश्वास जनता सहकारी बैंक ने प्राप्त किया है वो हम सब के लिए गौरव का विषय है। इसकी स्थापना श्रद्धेय मोरोपंत जी ने की। मोरोपंत जी को जो संघ परिवार से आते हैं वो सभी लोग जानते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने प्रसिद्धि के लिए कभी कुछ नहीं किया, और एक ऐसा व्यक्तित्व कितना भी बड़ा चैलेंज हो इसको पीठ नहीं दिखाया, उसका नाम मोरोपंत पिंगले। मेरे जीवन में 4 घंटा ही मोरोपंत जी का संपर्क रहा। अहमदाबाद से भावनगर जाते वक्त मैं उनका प्रबंधक था। मेरी किशोर अवस्था थी, स्वयंसेवक बना ही बना था, मगर वो 4 घंटे में देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, विचारधारा के लिए, सार्वजनिक जीवन के लिए किस प्रकार से सोचा जा सकता है, उसका बहुत बड़ा अकूत भंडार मेरे जीवन के लिए मोरोपंत जी ने 4 घंटे के संपर्क में मुझे संपर्क कराया। आज मैं मनपूर्वक मोरोपंत जी को मनपूर्वक प्रणाम और श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का अमृत महोत्सव का समारोह में आया हूं, तब कोई भी संस्था जब 75 साल तक सातत्यपूर्ण तरीके से प्रगति करती है तो उसके स्थापक, उसके संचालक और उसके सदस्य तीनों सभी उद्देश्यों को पूरा करते हैं, तभी ये हो सकता है, वरना ये नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बैंक के सभी सदस्यों को, संचालक जो अब तक आए हैं वो सभी को हृदय पूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मोदी जी ने राष्ट्र के सामने 2 संकल्प रखे। 2047 तक इस देश को पूर्णतः विकसित राष्ट्र बनाना और 2027 तक इस देश की इकोनॉमी को
$5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। और ये दोनों संकल्प अगर सहकारिता क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं तो अधूरे रह जाएं। हो सकता है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए मगर हर एक व्यक्ति के लिए काम, वो संकल्प पूरा न हो सकता है 47 में हम पूर्ण विकसित राष्ट्र बन जाए मगर हर परिवार में समृद्धि का संकल्प पूरा न हो तो ये दोनों संकल्प अधूरे रहते हैं। और हर एक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम देना और हर एक व्यक्ति को देश के विकास के साथ जोड़ना, हर परिवार को समृद्ध कराना, ये केवल और केवल कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से हो रहा है। इसलिए मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है और सहकारिता मंत्रालय का मंत्र रखा है सहकार से समृद्धि। मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर देश के 70 करोड़ गरीबों के जीवन में कई काम जो पीढ़ियों से नहीं होते थे वो एक ही 10 साल में कर दिए। घर में बिजली, घर में पानी, घर में शौचालय, घर में गैस, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा और 5 किलो तक का हर व्यक्ति को अनाज। अब ये 70 करोड़ लोगों के सामने एक समस्या है कि जिसके लिए पूरा जीवन मेहनत करते थे वो तो समाप्त हो गया, तो आगे क्या करना। अब वो आगे बढ़ना चाहते, देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, परंतु उनके पास पूंजी नहीं और पूंजी के बगैर अपने परिवार का विकास करना है और अपने देश के विकास में योगदान देना है तो इसका एकमात्र रास्ता है कोऑपरेटिव और सहकारिता। छोटी छोटी पूंजी मिलाकर एक बहुत बड़ा काम करना, इसी का नाम सहकारिता है और जनता सहकारी बैंक इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। छोटे लोगों का बड़ा बैंक, इस सूत्र को जनता सहकारी बैंक ने सार्थक किया है। हमने ये 3 साल में कोऑपरेटिव मूवमेंट को मोमेंटम देने का काम किया है। भारत के कोऑपरेटिव के मॉडल को मार्केटेबल बनाया है। कोऑपरेटिव एजुकेशन को हम सहकारिता विश्वविद्यालय का बिल लाकर इसको एम्पावर कर रहे हैं। कोऑपरेटिव इनोवेशन को इंटीग्रेट कर देश के विकास की हम शक्ति बनाना चाहते हैं और कोऑपरेटिव डेवलपमेंट को मोदी जी ने डायरेक्शन देने का काम किया है और एक बहुत बड़ी ताकत पैक्स से लेकर एपेक्स तक खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मंत्रालय के माध्यम से किया है। आज ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने भारतीय जनता पार्टी सांसद कमलजीत सहरावत के साथ राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल का निरीक्षण किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को व्यक्तियों और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के व्यावसायिक ऋणों पर लगाए जाने वाले पूर्व भुगतान शुल्क को हटाने का प्रस्ताव किया। भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में बांग्लादेश के 27 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विनियमों के कथित उल्लंघन को लेकर BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर करोड़ों रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अरैल के सेक्टर 25 में वैदिक टेंट सिटी फायर स्टेशन के अंतर्गत गंगा संकुल में आग लग गई, जिस पर दमकल विभाग की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए काबू पा लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 6 दिवसीय यात्रा पर गुवाहाटी पहुंचे।
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने जंगल में छापेमारी कर विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था भाजपा के कथित विश्वासघात का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत है और राज्य भगवा पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के अन्याय के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखेगी। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि आरोपों का सामना कर रहे मंत्रियों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। यूपी के लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लखीमपुर अब पिछड़ा जिला नहीं रहा। साथ ही बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड द्वारा 28.5 करोड़ रुपए की लागत से देश के पहले पीएलए प्लांट की स्थापना की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। अब लखीमपुर खीरी पिछड़ा जनपद नहीं है। आज अकेले इस जनपद में हम लोग लगभग 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें गोला गोकर्णनाथ के इस मंदिर के कॉरिडोर का शुभारंभ तो है ही, इससे ठीक पहले मैं देश का पहला पीएलए प्लांट जो बायोप्लास्टिक निर्माण का एक नया प्लांट यहाँ पे बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड के द्वारा लगाया गया है, 2850 करोड़ रुपए के उस प्लास्टिक प्लांट का भी शिलान्यास करके मैं कुंभी से यहाँ पर आया हूँ। आज यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क ही नहीं बल्कि लखीमपुर खीरी वासियों के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है। मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ भी आज हम लोगों के द्वारा आपके माध्यम से किया जा रहा है और साथ साथ विकास की ढेर सारी परियोजनाएं जो लखीमपुर खीरी की जनता जनार्दन के जीवन को सुगम भी बनाएगी, रोजगार का सृजन भी करेगी। यह सभी हुआ है हमारे इन जनप्रतिनिधियों के प्रयास से, सरकार के सहयोग से और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन से। शिवरात्रि के अवसर पर लगभग 4500 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, मुझे याद है जब देश आजाद हुआ था तो लखीमपुर खीरी का मतलब होता था विकास में बहुत पीछे। मलेरिया यहाँ भय का प्रतीक होता था और यहाँ पर साधन नहीं थे। दुधवा नेशनल पार्क था लेकिन वहां पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं थे। अब तो हम लोगों ने पलिया में एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए पैसा भी दे रखा है और मैं भी रोमी जी से यही बात कर रहा था। इस पैसे के साथ साथ यहाँ के बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान करने की दिशा में भी सरकार कदम बढ़ा रही है। इसके लिए बाढ़ बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की कार्रवाई होगी या नदी को चैनलाइज करने की कार्रवाई, जिसमें एनजीटी या किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। वह प्रयास प्रारंभ करके आने वाले कुछ समय में डबल इंजन की सरकार यहाँ के विकास को, यहाँ पे स्पिरिचुअल टूरिज्म को, इको टूरिज्म को इतना बढ़ाएगी कि यहाँ पर रोजगार की कमी नहीं रहेगी। बहनों और भाइयों, प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जनपदों में से एक लखीमपुर खीरी की धरती अत्यंत उर्वरा धरती है। सोना उगलने का काम करती है यहाँ की धरती और इस क्षमता को पहले कनेक्टिविटी के साथ नहीं जोड़ा था। बहराइच से मैलानी के बीच में रेलवे लाइन चलेगी, बंद होगी, इसी उमाखो में रहती थी। हमने कहा पैसा जितना लगेगा हम देंगे, जो आवश्यकता पड़ेगी हम देंगे। टूरिज्म के लिए इसको प्रमोट करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय रेल इस दिशा में जो सकारात्मक कदम आगे बढ़ा रही है, यह यहाँ पर उस टूरिज्म की दिशा में एक नए युग की शुरुआत को आगे बढ़ाएगा। यहाँ के जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई, थारू जनजाति से जुड़ी हुई बहनों के द्वारा थारू जनजाति की संस्कृति के अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ साथ जिस प्रकार के प्रोडक्ट को उन्होंने दिया है, आगे बढ़ाया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इसकी चर्चा करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया।
अपने उद्घाटन भाषण में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय कृषि सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बल्कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन रही है। उन्होंने किसानों को अन्नदाता से उद्यमी बनने का आह्वान किया और खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाने पर बल दिया। उन्होंने सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की चर्चा की और कहा कि देश के प्रत्येक किसान तक उन्नत तकनीक, उच्च गुणवत्ता वाले बीज और वैज्ञानिक नवाचारों को पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार दूसरी हरित क्रांति की दिशा में कार्य कर रही है, जिससे सूखा, सहिष्णुता, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और पूसा जैसे संस्थान बेहतर किस्मों और नई कृषि तकनीकों का विकास कर किसानों को सशक्त बना रहे हैं। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, पूसा के निदेशक डॉक्टर CH श्रीनिवास राव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर DK यादव, पूसा के संयुक्त निदेशक डॉक्टर RN पडारिया, कृषि वैज्ञानिक, किसान प्रतिनिधि और विभिन्न राज्यों से आए प्रगतिशील कृषक उपस्थित रहे। विकसित भारत बनाने का अभियान चल रहा है, लेकिन विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का भी कहना है बिना खेती, किसानी और किसानों के नहीं बन सकता। आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, प्राण है और खेती की आत्मा किसान है। और मैं कृषि मंत्री ना अतिथि ना मुख्य अतिथि, मैं तो आपका सेवक हूँ। किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है और इसी भाव से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प पूरा करने के लिए लगातार कृषि के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। हम 6 तरह की चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं किसान भाइयों। और मैं किसान भाइयों कह रहा हूं तो मैं भी किसान हूं। अभी कद्दू की बात कर रहे थे रामनाथ जी, आपने तो 40-50 साल पहले कद्दू लगाए थे। मेरे खेत में आज भी कद्दू लगा हुआ है, अभी कद्दू की खेती कर रहा हूँ। शिमला मिर्च भी है, टमाटर भी है, रेट कम हो गए। जब बम्पर राम भैया, जब क्रॉप बम्पर आती है तो कई बार कीमतें गिरती है, लेकिन मैं फूलों की खेती भी करता हूँ। गेंदा भी है, जरबेरा भी है, खुले में गिलाई डोला भी लगाता हूँ, गेहूं की और धान की खेती भी करता हूँ। और मैं ऐसा किसान नहीं हूँ कि मंत्री बन गया तो साहब मैं तो साला में तो साहब बन गया, अब काय को खेत में जाऊं। अभी भी मैं महीने में 2 बार कोशिश करता हूँ अपने खेत में पहुंच जाऊं। खेती को जीते हैं हम लोग और इसलिए कैसे देश में, वैसे मैं बधाई देता हूँ, ICR को भी बधाई देता हूँ। आज जिस तरह की किस्में, उन्नत किस्में हमने लगाई दिखाई है, लाइव प्रदर्शन है एक तरह से, वो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। एक बार ICR के लिए भी ताली बजा दी जाए। हमारे साइंटिस्ट बैठे हैं, वो दिनों रात परिश्रम कर रहे हैं। मीडिया के मित्रों के माध्यम से हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारा संकल्प है नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना, पर हेक्टर उत्पादन अभी भी बढ़ाना है। आज मुझे गेहूं की वैरायटी के बारे में बताया कि 80 कुंटल 1 हेक्टर में गेहूं का उत्पादन हो सकता है और हो रहा है कुछ जगह। अब 45-50 का एवरेज तो लगभग हर जगह, लेकिन उत्पादन बढ़ाने की गुंजाइश अभी भी है। पर हेक्टर उत्पादन बढ़े और उत्पादन बढ़ाने के अगर सबसे प्रमुख चीज कोई है तो वो है अच्छे बीज। आज मैंने देखा कि बीज के लिए लाइन लगी है, किसान अच्छे बीज चाहते हैं और अच्छे बीज की वैरायटी तैयार करने का काम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर रही है। पर एक चीज मुझे अभी लगती है जिस पर तेजी से काम करने की जरूरत है और हम करेंगे कि अच्छे बीज जल्दी से जल्दी किसानों तक कैसे पहुंच जाए। नहीं तो यहाँ तो हमने देखा कि पालक के पत्ते कितने बड़े बड़े, गेहूं भी देखी, सरसों भी देखी, फूलों के रंग भी देखे, सब्जियों की छटा भी देखी, लेकिन ये छटा कितने जल्दी किसानों के खेत में पहुंच जाए। ये जो टाइम पीरियड है, प्रधानमंत्री जी ने 109 वैरायटियां जारी की बीजों की किस्में, ये कितने जल्दी हम किसान तक पहुंचा पाए खेत में। ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, उसके बाद किसान के हाथ लग, और हम कोई और ऐसा तरीका निकालेंगे जिससे कुछ चीजें और जल्दी हम कैसे कर पाए। उन्नत बीज किसान को मिल जाए तो बाकी काम किसान अपने आप कर लेगा। तो उत्पादन बढ़ाना, दूसरा उत्पादन की लागत घटा और उन्नत बीज पहुंचाने के लिए ये बात बिल्कुल कही, रामनाथ जी ने भी कही और पाठक जी ने भी उल्लेख किया, विज्ञान और किसान को जोड़ना पड़े। लैब टू लैंड, मतलब पाठक जी एक प्रयोग हमने शुरू किया है, आधुनिक कृषि चौपाल, जिसमें वैज्ञानिक और किसान की बात होती है, लेकिन वो अभी पॉपुलर नहीं हुआ है। इसलिए मैं ICR को निर्देशित करता हूं इस कार्यक्रम को अपने हाथ में ले ले। वैज्ञानिक और किसान हर महीने एक जगह बैठ के खेतों में चर्चा करे और उस चर्चा का प्रसारण पूरे देश के किसानों के लिए किया जाए, ताकि महीने भर में जितने नए प्रयोग हो उसके बारे में एक जगह वैज्ञानिक बताएं और बाकी जगह किसान देखे और देख के सीखे। ठीक बात है कि नहीं, बताओ भाई। और प्रयोग हो गया लैब
में किसान तक पहुंचे ही नहीं तो प्रयोग का लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए अगले महीने से आधुनिक कृषि चौपाल ICAR के निर्देशन में किया जाएगा। साइंटिस्ट उसकी भूमिका तैयार करें, इस महीना कौन सा विषय, और उस पर किसानों से सवाल मंगाएं कि वो कौन कौन सी जानकारी चाहते हैं, और फिर कुछ किसान पूछें, वैज्ञानिक बताए या उन्नत अध्येता किसान भी बताएं कि हमने ऐसा किया और उसका ये फायदा हुआ, और वो बात टीवी के माध्यम से पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट की जाए या रिकॉर्ड करके टेलीकास्ट की जाए, प्रचार करके, ताकि किसान देख लें कि कहां कहां क्या काम हो रहा है और वैज्ञानिकों ने कौन कौन से अनुसंधान किए। दूसरी चीज है, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी। पैदावार बढ़ गई और लागत बहुत लग गई तो फायदा थोड़ी होता है। वैसे उत्पादन बढ़ने से भी लागत घटती है, अगर पर हेक्टर ज्यादा उत्पादन हो जाता है तो लागत भी घट जाती है। लेकिन लागत घटाने की कई योजनाएं, आज विस्तार से बात नहीं करूंगा। 24 तारीख को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भागलपुर में बिहार के किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डालने का काम कर रहे हैं। परसों मैं भी भागलपुर रहूंगा और कल मैं जाऊंगा बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के बीच। अपन कृषि भवन में बैठने वाले कृषि मंत्री नहीं है, किसानों के बीच जाएंगे, मखाना कैसे बोते हैं देखेंगे, उनके साथ बैठेंगे और मखाना बोर्ड बनेगा तो किसानों की सलाह के आधार पर बनेगा। आधुनिक कृषि चौपाल हमने प्रारंभ किया है, जिसमें हर महीने जो रिसर्च होंगे वैज्ञानिक करेंगे वो किसान के पास पहुंच जाए। उसमें भी अब ICAR ठीक से एपिसोड तैयार करके किसानों को दिखाने का काम करेगा। ये कृषि मेला जितने हमारे शोध और अनुसंधान होते हैं खेती के क्षेत्र में, उनको किसानों तक पहुंचाने का बड़ा प्रभावी काम करता है। और अभी 3 दिन ये मेला चलेगा और आप देख रहे हैं कि किसानों का मेला भी यहाँ लगा हुआ है। कोई तो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बैठ के नहीं बनाएंगे, हम कृषि भवन में किसानों के बीच बनाएंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में संगठन पर्व 2024 के तहत प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्य निर्वाचन बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संगठन और सरकार को एक दूसरे का पूरक बताया। वहीं सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को बधाई देते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में संगठन नई ऊंचाइयों को छुएगा और पार्टी प्रदेश में और मजबूत होगी। ये संगठन का काम और सरकार का काम दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि संगठन से ही सत्ता बनती है। संगठन जब हमारा मजबूत होता है, संगठन हमारा काम करता है तो हम जनसेवा भी करते हैं और सरकार का काम भी होता है। मित्रों, ये हमारा अभियान 21 अक्टूबर 1951 में प्रारंभ हुआ था। एक जनसंघ के नाम से एक नई पार्टी का गठन हुआ, क्योंकि आजादी के बाद में जब हमारे लोगों को लगा, क्योंकि आजादी से पहले सभी लोग कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आजादी की लड़ाई के बाद, आजादी मिलने के बाद जब वह अंतरिम सरकार का गठन हुआ, उस गठन के बाद ही जिस तरह की बातें आने लगी, एक देश दशा और दिशा में जिसमें चल रहा था, हमारे उन राष्ट्रवादी लोगों को लगा कि यह दशा और दिशा ठीक नहीं है, और उन्होंने 10-12 लोगों ने एक राष्ट्रवादी संगठन का निर्माण किया और वो 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के नाम से गठन हुआ, जो धीरे धीरे चरेवेती की अवधारणा को लेकर के, क्योंकि उस समय काम करना बड़ा मुश्किल था। आज हम आपको काम करने का मौका मिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि नीम की ईंट वो बने थे, उन नीम की ईंटों से उन्होंने जिस तरह से गढ़ने का काम किया, इमारत बनाने का काम किया, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं उसमें एक नहीं, दो नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियां उसमें खप गई और हमारे लोगों ने इतना बड़ा संगठन खड़ा कर करके दिया है। और ये वही संगठन पर्व है। पहले हमारा संगठन पर्व उन्होंने कहा था कि यार देश के अंदर लोकतंत्र है तो पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र होना आवश्यक है। और मैं कह सकता हूं कि आज हमारा चाहे बूथ अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष का चुनाव हो, जिला अध्यक्ष का चुनाव हो, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, हम सहमति बनाते हुए हम एक दूसरे को सहयोग के साथ हम उस चुनाव को करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। अगर इस देश में किसी राजनीतिक पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आप सभी लोग जिस मेहनत के साथ एक एक कार्यकर्ता बूथ समिति से स्टार्ट हुआ, बूथ अध्यक्ष से स्टार्ट हुआ, उसने मंडलों का गठन किया, उन्होंने जिलों का गठन किया और जिलों का गठन करके आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ है और आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारे कार्यकर्ता के अंदर वो भाव और भावना, संस्कार, विचार, ये विचार जब आते हैं तो हमारा संगठन खड़ा होता है। और उसी रूप में आप देख सकते हैं कि जो 8-10 लोगों का जो संगठन था, जो उन्होंने स्टार्टिंग की 21 अक्टूबर 1951 को, वो आज देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बड़ी मन में खुशी होती है, आज देश के अंदर देख रहे हैं कि आज सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम